Yugadik, is my voice clear to you? Is my voice audible to you? Yes, sir. Okay. So I hope that you have watched last day's video, right? So in Yes. today's class I will discuss an last concept of linear algebra, that is called diagonalization. Okay. So first of all, this is our chapter, diagonalization of a matrix by similarity transformation. So what we will call similar matrix. A matrix A is said to be similar to the matrix B if there exists a non-singular matrix P such that B can be expressed as P inverse AP. And this transformation of A to B is known as similarity transformation. It is clear, if for any matrix A, if there exists B, there exists a non-singular matrix P such that B can be expressed as P inverse AP. This transformation of A to B is known as similarity transformation. Diagonalization of a matrix. Let A be a square matrix. If there exists a non-singular matrix P and a diagonal matrix D such that P inverse AP equal to D, then the matrix is said to be diagonalizable and D is said to its diagonal form or canonical diagonal of the matrix A. Okay. So what is called by modal matrix? So what is called by modal matrix? The modal matrix which diagonalizes A is called the modal matrix of A and is obtained by grouping the eigenvectors of A into a square matrix. What is spectral matrix? The resulting diagonal matrix D is known as the spectral matrix. The spectral matrix D, whose principal diagonal elements will be eigenvalues of the matrix. So you understand what I am trying to say here. If you can write D equal to P inverse AP, where P is the matrix constitutes all the eigenvectors, then P inverse AP will be written in the form of D, where D contains the diagonal elements of D will be eigenvalues of the matrix A. Also we can obtain power of a matrix by using diagonalization. So if A is diagonalizable, then A square is also diagonalizable, and similarly A ki power n is also diagonalizable, right? So your A ki power n, if your A is the n eigenvalues lambda 1 lambda 2 lambda n, okay, then A ki power n will be P into lambda 1 ki power n lambda 2 ki power n up to lambda n ki power n P inverse. Now there is a theorem. If a square matrix A of order n, Sumitra, I think I have totally discussed in last class about eigenvalues and eigenvectors, right? Yes, sir. So what is eigenvector? Eigenvector is, for a matrix A, x is called lambda is called the eigenvalue if there exists a non-zero vector such that Ax is written in the form of lambda x. This lambda is called the eigenvalue and x is called the eigenvector, and we know we have determined eigenvalues for certain class of matrices determining the characteristic equation, right? If a square matrix A of order n has n linearly independent eigenvectors corresponding to the n eigenvalues L1, lambda 1, lambda 2, lambda n respectively, then a matrix P can be found such that P inverse AP is a diagonal matrix. If x1, x2, xn are not linearly independent, this result is not true. Okay, I thought somebody joined. Also there are many properties that they will be pairwise orthogonal and so on. There is proof. Now here what you have to do, determine the modal matrix P of A. A is -2, 2, -1, 2, 1, -2, -3, -6, 0. You need to verify that P inverse AP is a diagonal matrix. So what will be the modal matrix? The modal matrix will be the matrix constituting the eigenvectors. So I will just solve this problem, other I will keep you
फॉर योर टास्क। देखो, सो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई, दिस इज इक्वल टू 0। सो -2 माइनस लैम्डा 2 माइनस 3 2 1 माइनस लैम्डा -6 -1 -2 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0, which will give you this characteristic equation lambda minus 5 into lambda plus 3 whole square. So thus given eigenvalues are lambda equal to 5, lambda equal to -3 and again lambda equal to -3. So -3 has arithmetic multiplicity -3, where lambda equal to 5. How you will determine ax equal to lambda x or a minus lambda into x equal to 0, right? So so here you need to put -5 -5, so you will get -7 2 -3 2 -4 -6 -1 -2 -5 into x y z, and then we know that how to solve this kind of homogeneous equations. You need just one solution and you will get that solution to be 1 2 -1. Similarly for -3, you will have two linearly independent eigenvectors. One will be 2 -1 0, other one will be 3 0 1. So x1 x2 x3. So modal मैट्रिक्स will be 1 2 -1 2 -1 0 3 0 1, आइगन वेक्टर्स को हमने ऐसे लिख दिया। अब पी इनवर्स निकालना है। पी इनवर्स का क्या मतलब होता है? एडजॉइंट पी डिवाइडेड बाई डेट पी। तो आपको एडजॉइंट पी का मतलब पता है, ये जो पहला 1 एलिमेंट है इसका एडजॉइंट मैट्रिक्स आएगा 1 2 2 -1, इसका डिटर्मिनेंट वो आएगा -1 -4, सो दैट विल बी माइनस, इसमें कुछ गड़बड़ी हो रहा है, नहीं सॉरी, इसका यहाँ पे आएगा ये वाला -1, इधर से ये वाला आएगा इसका कोफैक्टर -1 0 0 1, सो एडजॉइंट आएगा -1। 2 के लिए 2 into 1 -1 0, so that means that will be 2 but sign will be negative, so that will be -2. This 3, the element will be 2 into 0 and then plus minus of +1 and that will be -1, और उसके बाद उसका ट्रांसपोज लेना होता है। दैट्स वाई ये -1 -2 1 -1 वो इस रो कॉलम में आ गया है ना। एडजॉइंट ऑफ पी में कोफैक्टर्स को लिख के उसका ट्रांसपोज लेना होता है। आपको पता है ना एडजॉइंट कैसे निकालते हैं। और उसके बाद हमने क्या किया, तो पी इनवर्स, हमने पी इनवर्स निकाल दिया। अब पी इनवर्स निकालने के बाद हमें निकालना है पी इनवर्स ए इंटू पी। तो जैसे ही आप पी इनवर्स ए पी निकालोगे, यू विल गेट इट एज द मैट्रिक्स विल बी जस्ट, देखो -5 3 3, दैट मीन्स the diagonal form is -5 3 3, that means the diagonal of 5 -3 -3। तो इसका आइगन वैल्यूज क्या आ गया था 5 -3 -3, देखो वही फॉर्म रिटर्न आ गया। ठीक है, अब एक प्रॉब्लम करो, फाइंड ए मैट्रिक्स P which transforms the matrix A 1 1 0 -1 1 2 1 2 2 3 to diagonal form and hence calculate a की पावर 4। मतलब आपको क्या करना है, P ढूंढना है और फिर D निकालना है। तो D आ जाएगा आपका P इनवर्स AP, है ना, और फिर आपको A की पावर 4 निकालना है। तो पहले आइगन वैल्यूज निकालिए, उसका आइगन वेक्टर्स निकालिए, मोडल वेक्टर्स को लिख दीजिए, मोडल मैट्रिक्स निकालिए। ठीक है, फिर जो डायगोनल फॉर्म आएगा वो स्पेक्ट्रल मैट्रिक्स बन जाएगा। फिर A की पावर 4 हो जाएगा P इनवर्स D की पावर 4 इंटू P, और उसके बाद आपको A की पावर 4 मिल जाएगा जस्ट P इनवर्स D की पावर 4 P मल्टीप्लाई करके। करो इसको, आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स।
तो मेरा लैम्डा में प्रॉब्लम आ रहा है, नहीं निकल रहा है। निकाल लिया लैम्डा? आइगन वैल्यू इक्वेशन है लैम्डा क्यू माइनस 6 लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा माइनस 2। हाँ तो लैम्डा का वैल्यू निकाल पाए हो? वो नहीं हो रहा है। अच्छा, देखो एक बार, कुछ गलती तो नहीं फिर किया? से डिवीजन करना पड़ेगा ना शायद। देखो आइगन वैल्यूज तो 1 2 3 आएगा। देखो इधर मेरा भी कैलकुलेशन में गड़बड़ी हो सकती है, ठीक है, क्योंकि ये नोट ऑनलाइन से लिया गया नोट है तो इसमें गड़बड़ी हो सकती है, ऐसा नहीं कि ये विदाउट फ्री ऑफ एरर है। चलो कोई बात नहीं, आपको तो पता है ना इसको कि कैसे करना है, कि ए को आपको लिखना है पी इनवर्स ए पी के फॉर्म में, ठीक है। तो आपको आइगन वेक्टर मिल जाएगा पी इनवर्स, ऐसा आ रहा है -12 0 2 -2 2 2 -2 -1 0 -1। तो ना पी इनवर्स ए पी के फॉर्म में आप इसको लिखोगे। उसके बाद ए की पावर 4 इज पी इनवर्स डी की पावर 4 पी की पावर 4। तो उसके बाद आप कर दोगे तो ये -4 65 130 -50 66 130 -40 40 81 आएगा। आप एक काम करना, ठीक है सुमित्रा और युगादिक, आप लोग ए की पावर 4 मैट्रिक्स को निकालना, ठीक है। जैसे ही आप ए की पावर 4 मैट्रिक्स को निकाल दोगे तो उसको देखना इसके साथ मैच हो रहा है कि नहीं। अगर मैच हो रहा है तो ये सॉल्यूशन सही है। चलो तो लैम्डा को निकालने सिंपली डिवीजन करना पड़ेगा ना, क्यूब में आ रहा है इसके। हाँ बताओ बताओ। हाँ हाँ सर, कर रहा हूँ सिंपली डिवीजन। समझे ना मेरी बात, क्या कहना चाहता हूँ मैं? जस्ट पी की पावर ए की पावर 4 निकालो जो इसके साथ मैच हो रहा है कि नहीं। चलो यहाँ पे टाइपो है, पी इनवर्स डी की पावर 4 पी इनवर्स है। चलो कोई बात नहीं। डिटरमिन द मोडल मैट्रिक्स फॉर पी फॉर 1 1 3 1 5 1 3 1 1 एंड हेंस डायगोनलाइज है। इसको करो। Try to solve this problem. Determine the modal matrix P for 1 1 3 1 5 1 3 1 1 and hence diagonalize है। अच्छा नेक्स्ट क्लास में वेडनेसडे को लूँगा, ठीक है 5 बजे से, ठीक है सुमित्रा युगादिक। लास्ट क्लास हम 5 बजे लेंगे वेडनेसडे को, जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में थोड़ा बहुत बात करेंगे, ठीक है। ओके सर, उसके बाद क्लास नहीं होगा? नहीं, ये उसको वो लास्ट क्लास होगा। ओके सर। इसको पटापट कर लो, बस आपको आइगन वैल्यू निकालना है, ठीक है। और ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको बस यू नीड कंप्यूटेशनल स्किल्स, नथिंग। वहाँ डायगोनलाइजेबिलिटी में 1 2 काइंड के ही प्रॉब्लम आपके सिलेबस में है ऐसे, ठीक है। तो आपको लिए वो बस कंप्यूटेशनल स्किल ही चाहिए। अगर गड़बड़ी हो गया कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालने में तो सब गया। इसमें जितने भी वो ट्यूटोरियल वाले प्रॉब्लम्स दिए थे वो आपने सॉल्व किया है? ट्यूटोरियल्स के जो प्रॉब्लम्स थे आइगन वैल्यूज डायगोनलाइजेबिलिटी इसमें जिसमें
सर लास्ट का पीडीएफ अपलोड नहीं हुआ है, चेक कर रहे थे वो किस जो लीनियर अलजेब्रा का। मैंने ये सर वो ही कर रही थी तो जितना वीडियो लेक्चर है उसमें से ही के। नहीं, मैंने तो अपलोड कर दिया है। चलो कोई बात नहीं, मैं आज एक बार देख लूँगा, ठीक है। ये सर मैंने तो ये वाला नोट तो मैंने अपलोड कर दिया है। वैसे तो जो भी उन्होंने जो ट्यूटोरियल सीट का प्रॉब्लम्स दिया था वो आपने सॉल्व किया है, मतलब उन्होंने मतलब एनपीटीईएल के थ्रू जो जितने भी प्रॉब्लम्स दिए थे वो आपने सॉल्व किए हैं। ये सर पर वो वीडियो लेक्चर 3-4 में जो हुआ था वो नहीं हुआ है, कर लूंगे। अच्छा, लीनियर अलजेब्रा के कॉन्सेप्ट से ना, ठीक है, नहीं कोई बात नहीं वो 3-4 लीनियर अलजेब्रा का नहीं था, नहीं। नहीं, वो मुझे वीक पूछना 3 है। वीक 4 का, नहीं नहीं, मुझे उसका वीक नहीं थ्री वीक है। फोर से इंटरेस्ट नहीं है। आपको मैं पूछ रहा हूँ कि आपने जो लीनियर अलजेब्रा से जो ट्यूटोरियल सीट दिया गया है वो आपने सॉल्व किया है। ये सर। अच्छा ठीक है, ये सर। फिर ठीक है, नो प्रॉब्लम। सर लैम्बडा का वैल्यू 1 5 और 1 आ रहा है। सुमित्रा, मैच हुआ? तो सर आइगन वैल्यू में फिर प्रॉब्लम है, वो इक्वेशन में लैम्डा नहीं रहा है, सब कैंसिल हो रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है सुमित्रा, कुछ तो गड़बड़ी कर रहे हो तुम। ये आया क्या? ये हुआ देख, -2 3 6। नहीं सर मेरा भी गलत आया। चलो कोई बात नहीं, इसका मुझे एक काम करना, इसका ना तुम मुझे इसका प्रॉब्लम तुमने लिख लिया है तो मुझे बताओ। मैं एक काम करता हूँ, रुको, इसको मैं जुगाड़ लगाता हूँ, ये सही है कि गलत है देखने के लिए। अच्छा, ए मैट्रिक्स क्या है बताओ? 1 1 3 रुको, 1 1 3 1 5 1 5 1, और उसके बाद क्या है? 3 1 1। 3 1 1।
-236 नहीं, आप लोगों का ही गलत है, ठीक है, -236 यही आएगा। सो द आइगन वैल्यूज ऑफ आर -2, 3 एंड 6। लैम्डा इक्वल टू -2। अब इसको आइगन वेक्टर आपको निकालना है -2, 3 एंड 6 के लिए। तो आइगन वेक्टर आपको कैसे निकालना है, ए माइनस लैम्डा आई एक्स। आप फिर -2, आपको पता है कि इसका आइगन वैल्यू -2, 3,6 है। आप एक काम कीजिए, आइगन वेक्टर निकालिए तीनों आइगन वैल्यूज़ के लिए। तीनों आइगन वैल्यू और एक दूसरे से सेम नहीं है, तो दैट मीन्स द कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स विल बी लीनियरली इंडिपेंडेंट। -236 के लिए निकालिए आइगन वेक्टर्स। सर पहले का आया 313171313। ये यस सर यही। हाँ, तो अब निकालना होगा x1 x2 x3। कैसे निकालोगे, ओके सर। x1 और x3 को 1 ले लो और फिर x1 x2 को x3 के फॉर्म्स में निकाल लो, ठीक है।
एक सेकंड दो मुझे, हाँ मैं आता हूँ अभी। आप करो आइगन वेक्टर निकालो। आया कुछ आइगन वैल्यू निकला आइगन वेक्टर? इतना टाइम कैसे लगेगा जुगादी? सो मैंने क्या बोला, x3 को आप, हाँ बताओ। सर ये आइगन वेक्टर है देखो इसको कैसे निकालना है। -101 थर्ड, ये जो थर्ड रो है, इस थर्ड रो से 3x3 को x1 एंड x2 के नाम पे लिख दो और फिर ऊपर उसके जगह पे रिप्लेस कर दो x3 की जगह पे, ठीक है। फिर ऐसे निकालना है आपको। सर -101 if lambda equal to -2, if lambda equal to 3 1 -1 1, and if lambda हाँ, equal to if lambda 6 equal to 1 if to 1. lambda equal to -2 you will get -101, right? Yes sir, And if lambda equal to 3 you will get 1 -1 1. वाह बढ़िया। और lambda equal to If 6 lambda equal to 6 1 to 1. 1 to 1, वेरी गुड। तो अब आपको पी इनवर्स आपको बस लिख देना है ना, -101 1 -1 1 2 1। अब आपका पी इनवर्स 1 लिख निकालिए, ठीक है। ये आपका पी आ गया, -303 2 -2 2 1 2 1। वन -1 1, ये आपका आ गया -101 1 -1 1 1 2 1। अब उसके बाद उसको आप एडजॉइंट निकालोगे तो वो फिर वो बन जाएगा। फिर आपको डी इन टर्म्स ऑफ लिखना है रो इनवर्स ए रो, पी इनवर्स ए रो। अपने पी इनवर्स निकाला, ए रो आपके पास है, रो आपने ऑलरेडी निकाल चुके हो। अब बस आपको प्रोडक्शन लेना है, यू विल गेट इट टू बी जस्ट -236 डायगोनलिटी, राइट। चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट प्रॉब्लम्स देखते हैं। ये भी सेम प्रॉब्लम है, आई होप कि आप कर पाओगे इसे। ए की पावर 8 ए की पावर 4, बस रिपीटेड एप्लीकेशन करना है। आइगन वैल्यूज निकालो, पी इनवर्स उसका आइगन वेक्टर्स निकालो, पी इनवर्स रिपी करो, ए की पावर 8 और ए की पावर 4 निकाल लो, ठीक है।
आगे अच्छा चलो कोई बात तो है नहीं इस पे। तो हमने ऑलरेडी जो सिलेबस में जितना भी था हमने थोड़ा बहुत लीनियर अलजेब्रा को कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है, ठीक है। तो इसके बाद इस नोट में फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल्स ही रिटर्न आ रहा है। चलो कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, आप लोग हमने तो कैलकुलस का पूरा डिस्कस किया है ना। तो चलो यहाँ से कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, ठीक है। और कैलकुलस में शिफ्ट कर लेते हैं, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, तो पहले ये वाला प्रॉब्लम ट्राई करते हैं। इफ़ यू इक्वल टू लॉग एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, प्रूव दैट डेल डेल एक्स प्लस डेल डेल वाई डेल डेल जेड होल स्क्वायर यू इक्वल टू -9x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर। करिए इसको एक बार ट्राई कीजिए। जितना भी हमने लीनियर अलजेब्रा में डिस्कस किया इट इज़ सफिशिएंट, वो आपके एग्जाम के लिए ठीक है, उससे ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। हमने 3 कॉन्सेप्ट को कवर अप किया है। द कॉन्सेप्ट्स आर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स, डायगोनल अलजेब्रिटी। ये ऑपरेटर का मतलब है लैप्लासियन ऑपरेटर, नेबला स्क्वायर, ठीक है। ट्राई कीजिए इसे क्विकली। आया कुछ निकला? कर लीजिए जल्दी से।
सॉल्व कर रहे हो सुमित्रा? हेलो? ये सर वो होल स्क्वायर का चल रहा है। अरे ये कैसे है? तो इजी है यार, बस दो बार इनपुट करना है ना। ये देखो। सो वो इक्वेशन वन जो है वही निकल रही है। अच्छा, ये आ गया है ना 3x प्लस वाई प्लस जेड। ये सर ठीक है, तो देखो डेल यू डेल एक्स डेल यू डेल वाई डेल यू डेल जेड निकालो, इस सबका साम ले लो, तो ये आ गया 3/x प्लस वाई प्लस जेड। अब ये नैबला स्क्वायर यू है तो नैबला इंटू यू, तो ये आपका आ गया फिर नैबला इंटू नैबला यू, वो 3/x प्लस वाई प्लस जेड, तो इसका आ गया -3x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर -3x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर -3x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर। सो -3 ये आ गया आंसर। चलो ये प्रॉब्लम होम टास्क आप लोग देखना है इस प्रॉब्लम को, ठीक है। और ये प्रॉब्लम ऑलरेडी हमने क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, मेरे नोट में था ये, है ना। u इक्वल टू एफ ऑफ वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स एक्स माइनस वाई, सो प्रूव दैट डेल यू डेल एक्स प्लस डेल यू डेल वाई प्लस डेल यू डेल एज इक्वल टू 0, राइट। दिस प्रॉब्लम वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन आवर नोट्स, राइट। सर हाँ, ओके। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्या है। अच्छा, जैकोबियन का कॉन्सेप्ट भी हमने डिस्कस कर चुके हैं। चलो अब करते हैं जैसे जैकोबियन निकालना है, तो जैकोबियन भी हम जानते हैं। देखो u v w इट इज इन टर्म्स ऑफ x y एंड z, लेकिन हमें उल्टा जैकोबियन के इन्वर्स निकालना है, तो हम क्या करेंगे, u v w के हिसाब से जैकोबियन निकाल लेंगे। डेल ऑफ u v w डेल x y z u x u y u z v x v y v z w x w y w z, और फिर उसको उल्टा कर देंगे, तो वो आ जाएगा 1/1 + 8x y z। अब देखो इसको प्रूफ करो, u इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, v इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2xz, एंड w इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz आर फंक्शनली रिलेटेड। तो फंक्शनली रिलेटेड कैसे करोगे, इसका जैकोबियन 0 आ जाएगा। इधर से देखो 1 1 1, चलो कोई बात नहीं, आप एक बार करके करोगे इसको। चलो मैं बता देता हूँ। तो u इज एक्स प्लस वाई प्लस जेड, फंक्शनली रिलेटेड का मतलब है जैकोबियन जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो रिलेटेड रिलेशन का मतलब है जैकोबियन आपका 0 है। तो आपने जैकोबियन निकाला पहले, फिर हमने क्या किया, फिर हमने यहाँ से 2 कॉमन लिया, इधर से 3 कॉमन लिया, तो बाहर 6 आ गया। सो 1 1 1 एक्स माइनस वाई माइनस जेड वाई माइनस एक्स माइनस जेड जेड माइनस वाई माइनस एक्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड वाई स्क्वायर माइनस एक्स जेड जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई। अब हमने कुछ कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन लिया। क्या कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन, सॉरी रो में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन लगाया। क्या रो में ट्रांसफॉर्मेशन लगाया, दिस रो से हमने ये रो को माइनस किया, और ये रो से हमने सॉरी ये कॉलम से हमने ये वाला कॉलम माइनस किया, तो हमारा यहाँ पे 2 2 0 0 आ गया, यहाँ पे सिर्फ 1 आ गया। तो हम सिर्फ इस 1 के रेस्पेक्ट में ब्रेक कर देंगे, तो आ जाएगा 2x माइनस 2y इंटू दिस इंटू माइनस 2y माइनस 2z इंटू दिस। तो आप अगर इसको कैलकुलेटर करोगे तो आपको ये आ जाएगा 0। अब एक और प्रॉब्लम है, इफ़ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू यू y प्लस जेड इक्वल टू यू वी एंड जेड इक्वल टू यू वी डब्ल्यू, देन डिटरमाइन डेल एक्स वाई जेड डेल यू वी डब्ल्यू। करो इसको।
सर मेरा यू स्क्वायर भी 4 इंटू 1 माइनस 2b माइनस 2w प्लस 4bw आया। अच्छा, देखते हैं मैच हुआ कि नहीं। चलो, यह आया क्या? यू स्क्वायर भी इंटू समथिंग आया लेकिन वो कैंसिल नहीं हुआ, यहाँ पे कैंसिल हुआ। ये वाला जैकोबियन टर्म में देख लो, इसमें देख लो क्या गड़बड़ी हो रखी है। देखो इसमें क्या किया, R2 पे R2 प्लस R3 कर दिया। R1 सर मेरा R1 में माइनस यू नहीं आया, क्या प्लस आया? यू आया। एक्स भी करके देखो ना, एक्स भी नहीं, ये तो आना मुश्किल है। एक्स आ रहा है u इंटू 1 माइनस भी, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू यू, वाई प्लस जेड इक्वल टू यू भी, जेड इक्वल टू यू भी डब्ल्यू। सो वाई इक्वल टू यू भी माइनस यू भी डब्ल्यू एंड एक्स इक्वल टू यू माइनस यू भी, यू इंटू 1 माइनस भी, यही तो आएगा, माइनस यू आएगा ना। डेल एक्स डेल भी करोगे इधर तो माइनस यू आएगा ना, एक्स आपका यू इंटू 1 माइनस भी है ना, तो माइनस यू भी तो वो आएगा। मेरा प्लस हो गया इसीलिए नहीं आया। ठीक है, कोई बात नहीं, आप फिक्स कर लो उसे, ठीक है। आप इस वाले प्रॉब्लम को करो, उसको जल्दी से फिक्स कर लो ये देख के। और इफ़ यू इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, वी इक्वल टू 2xy, देन एक्स इक्वल टू आर कोसाइन थीटा, वाई इक्वल टू आर साइन थीटा, सच दैट आप निकालो डेल यू डेल वी डेल आर डेल थीटा इक्वल टू 4r3। कैसे करना होगा, यू और वी को कॉस आर एन थीटा के टर्म्स में लिखना है, फिर उसका जैकोबियन निकालना है। तो 4x2 आ गया 4r3। युगादिक तुम स्लो हो गए हो, नहीं आ रहा है फटाफट से। मैं कर रहा हूँ सर। कोई बात नहीं, चलो ये तो कर लोगे, इजी प्रॉब्लम्स हैं। तो ऐसे इस तरीके का प्रॉब्लम कर पाओगे ना। फंक्शनल डिपेंडेंस पे तो हमने मैथ ऑलरेडी कर दिया है। ये फंक्शनली रिलेटेड का तो कर पाओगे, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है कि जैकोबियन जीरो प्रूफ करना है। ओके, अब फिर से आ गया मैक्सिमा मिनिमा। चलो एक काम करते चलिए, निकालिए इस प्रॉब्लम का स्टेशनरी पॉइंट निकालिए। u इक्वल टू एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4xy माइनस 2y स्क्वायर। इसका स्टेशनरी पॉइंट कैसे निकालना है सबको पता है, ठीक है। इसका स्टेशनरी पॉइंट्स निकालिए फटाफट। स्टेशनरी पॉइंट कैसे निकालती है सुमित्रा?
del u by del x इक्वल टू 0, del u by del y इक्वल टू 0। अच्छा बढ़िया। फिर डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, जो डबल डेरिवेटिव del स्क्वायर u by del x का आर del एस स्क्वायर माइनस u टी by। स्क्वायर निकालना है, आई हाँ एन। वही। अगर डेल्टा लेस देन जीरो आ गया तो, डेल्टा लेस देन जीरो आ गया तो पहले ही सेटल है ना। आर एस माइनस टी स्क्वायर मतलब डेल्टा, आर एस माइनस टी स्क्वायर अगर लेस देन जीरो आ गया तो सैडल, ग्रेटर देन जीरो आया तो दो चांसेस हो सकते हैं, या तो माइनस या तो प्लस, और फिर उसके ऊपर सॉरी या तो मैक्सिमम या तो मिनिमम हो सकता है। उसके बाद आर के साइन के ऊपर डिपेंड करेगा, अगर आर ग्रेटर देन जीरो है देन इट इज़ मिनिमम, और आर लेस देन जीरो है देन मैक्सिमम। सुमित्रा कर रहे हो सोल्यूशन? यस सर। ओके करो, बस मुझे 2 मिनट टाइम दो। हाँ निकला फिक्स्ड पॉइंट, स्टेशनरी पॉइंट्स।
सर एक 0 0 आ रहा है और दूसरा नहीं आ रहा है। क्या आ रहा है? एक फिक्स एक पॉइंट पॉइंट आया 0 0 और दूसरा एक इक्वेशन है जो सॉल्व नहीं हो रहा है। सॉल्व नहीं हो रहा है। अच्छा ठीक है, देखते हैं। एक है 0 0 और दूसरा आ रहा है -√2 टू √2। इसमें एक ही फिक्स पॉइंट है सुमित्रा, -√2 एंड √2। एक तो 0 0 है ना, और ये दूसरा है -√2 सिर्फ √2। और 0 0 में यहाँ पे ये इन्होंने गड़बड़ी किया है। 0 0 हमारा निकला ना, तो 0 0 में हमें क्या क्या कैसे निकालेंगे कि ये क्या आएगा। 0 0 के हमें क्या आ गया, डेल्टा इक्वल टू 0, RS माइनस टी स्क्वायर आएगा, 0 आ गया। दैट मीन्स लीनियर जो हमारा जो मेथड है वो मेथड फेल हो रहा है। तो तब हमें कुछ दूसरा उल्टा सीधा ट्रिक्स लगा के उसको प्रूफ करना है कि वो क्या है। तो देखो यहाँ पे अगर आप 0 0 पुट कर दोगे तो जैसे x⁴ u(xy) minus u0 0, so this u(xy) minus u0 0 will be greater than 0 if x⁴ plus y⁴ plus 4xy is greater than 2x² plus 2y², otherwise it will be less than 0. So that means 0 0 is a saddle point. Okay, or 0 0 is not a extreme value, that means 0 0 will be a saddle point. If you determine 0 0 you will get a saddle point. Okay, सर यहाँ पे x इक्वल टू -y लिया है, लेकिन क्वेश्चन में गिवन है x y बोथ आर ग्रेटर देन 0। अच्छा x y greater than 0 और हमने क्या निकाला -√2। तो मेरा जो इक्वेशन आया x³ - y³ इक्वल टू 0, ये वाला मैंने डिस्कार्ड कर दिया, जो एडिंग 1 और 2 के बदले में सब्ट्रैक्टिंग 1 और 2। अच्छा तो x³ - y³ x, अच्छा 0 0 देखो 0 0 के एक्सक्लूड करके, तो √2 नहीं आ रहा है, √2। अच्छा देखो x³ - सॉल्व नहीं हो रहा था। अच्छा ठीक है, तो फिर मुझे लग रहा है इस कंडीशन को हम, ये जो एडिंग 1 और 2 हुआ है तो x³ + y³ इक्वल टू 0 है, हाँ तो x इक्वल टू -y, लेकिन यहाँ पे गिवन है x y बोथ आर ग्रेटर देन 0, हाँ 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 तो ये वाला मैंने डिस्कार्ड कर दी। तो एडिंग 1 और 2 के प्लेस में मैंने कर दी सब्ट्रैक्टिंग 1 और 2। हाँ, तो x³ - y³ का आ गया x³ इक्वल टू y³, राइट। सर तो एक आया x इक्वल टू y, टेकिंग x - y इक्वल टू 0। हाँ x इक्वल टू y, x इक्वल टू अगर y आ गया तो आपका x इक्वल टू y आएगा, तो यहाँ पे ऐसा आपका आ जाएगा x³ इक्वल टू 0 और इधर से आ जाएगा y³ इक्वल टू 0, तो आपको सिर्फ 0 0 ही मिल जाएगा ना। तो हाँ, तो इस कंडीशन को थोड़ा डाइल्यूट करना पड़ेगा। ये मैं बोल रहा हूँ ना, इसमें ये दूसरे की नोट्स में यही प्रॉब्लम होती है, एरर्स होती है। चलो कोई बात नहीं, हमने रिगोरसली ये वाला जो पार्ट है फंक्शनल वैल्यू का, तो हमने वो लास्ट क्लास मतलब बाकी जब हम कैलकुलस पढ़ रहे थे तो हमने क्लियरली सॉल्व किया था ना ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स। Yes, sir. हाँ, तो इसमें तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, जो भी आपको एग्जाम में आएगा आप होपफुली कर लोगे, है ना। हाँ सर। इसमें तो प्रॉब्लम होने की कोई गुंजाइश ही नहीं है, कोई जगह ही नहीं है प्रॉब्लम होने का, है ना। चलो कोई बात नहीं। अच्छा इसका देखो, इन्वेस्टिगेट द मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ द फंक्शन f(x(y) इक्वल टू x³ y² 1 - x - y, इसका करो। इसमें कुछ रेस्ट्रिक्शन नहीं है। सुमित्रा इसका माइनस वाला पार्ट देखना, इसका माइनस करके कितना आएगा, x³
माइनस वाई क्यूब माइनस 2x प्लस 2y इक्वल टू 0। ठीक है, तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब से आएगा x माइनस वाई, और उधर 2x से आएगा x माइनस वाई कॉमन, तो 2 रह जाएगा, तो आपका बनेगा x माइनस वाई, और एक सर, है ना। हाँ एक्स माइनस वाई कॉमन लेने के बाद हाँ और एक फैक्टर आया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस 2, वही वाला फैक्टर सॉल्व में हो रहा है। अच्छा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस 2 इक्वल टू 0, है ना। यस सर। हम्म, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस 2। Sumitra, if you take solution of that also, then you will get x square plus y square plus xy minus 2। तो आप अगर x इक्वल टू रूट टू और y इक्वल टू माइनस रूट टू लोगे ना, तो वो सेटिस्फाई हो जाएगा। देखो, रूट टू स्क्वायर इज प्लस 2, माइनस रूट टू स्क्वायर इज अगेन प्लस 2, सो 2 प्लस 2 4, और इधर प्लस एक्स वाई, दैट मीन्स रूट टू इंटू माइनस रूट टू, यू विल गेट माइनस 2 एंड यू हैव ऑलरेडी माइनस 2। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस 2 इक्वल टू 0 वो सेटिस्फाई कर रहा है, दैट मीन्स एक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2, वाई इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2, है ना। तो सॉल्व नहीं हो रहा, बट मतलब फिर से ट्राई करूंगी फिर से वो वाला। नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस 2 इक्वल टू 0, तो आप देखो ना, एक्स इक्वल टू रूट टू और वाई इक्वल टू माइनस रूट टू दे दोगे तो वो सेटिस्फाई हो जाएगा, तो अल्टीमेटली यू विल गेट द सेम रूट, एक्स इक्वल टू रूट टू, वाई इक्वल टू माइनस रूट टू। यस सर। समझे तू मेरी बात। यस सर, तो ये वहाँ वाला रूट सेटिस्फाई कर रहा है, सिर्फ फैक्टराइज करना है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली। लेकिन तुम एक चीज देखो, अगर तुम रूट टू लोगे, रूट टू क्यूब विल बी 2 रूट टू एंड हियर विल बी माइनस रूट टू, माइनस रूट टू 2 रूट टू, हाँ फिर भी इधर भी रूट टू ही आएगा, रूट टू एंड माइनस ही आएगा, रूट टू एंड माइनस रूट टू ही आएगा। चलो कोई बात नहीं, प्रॉब्लम 2 देखो। एफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स क्यू वाई स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स माइनस वाई।
सुमित्रा, आई विल टीच इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 इन द नेक्स्ट सेशन, सो उसका भी वो ले लेना, ठीक है? यस सर। वो जनवरी के एंड से वो क्लास स्टार्ट हो गए उसके। जल्दी कर लो इसको, ये लास्ट प्रॉब्लम है आज का। बाकी मैंने ये नोट अपलोड कर दिया है, तो इसको अच्छे से आप ध्यान से सॉल्व करना। मैं वेडनेसडे को 5 से 7 क्लास लूँगा, उस पर आई विल डिस्कस डिफरेंशियल इक्वेशंस। ओके, योगादिक सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यस सर, कर रहा हूँ। सुमित्रा, हुआ सॉल्व? तो पॉइंट है 0 0 1/2 1/3, और अभी RS माइनस टी स्क्वायर चेक करना है, सेकेंड डेरिवेटिव निकलना है। अच्छा, फिक्स्ड पॉइंट क्या निकाला तुमने? 0 0 और एक 1/2 1/3। 0 0 1/2 1/3, वेरी गुड वेरी गुड। यहाँ से 0 0 आ गया और इधर से आ गया 1/2 1/3, बढ़िया बढ़िया, वेरी गुड। हमने बाकी वो लैग्रांजेस मल्टीप्लायर टेस्ट भी यूज़ किया था, कैसे बाउंड्री में निकालना होता है वाई का वैल्यू पुट करके, वो भी हमने किया था। इंटीरियर में हमने लैग्रांजेस लगाया था, ये सब याद है ना? ये इसका फॉर्मूला लगाया था फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स का। फिर बाउंड्रीज में हमने एक्स और वाई की जगह पे नहीं, वो तो चलो ठीक है, फिर हमने वो सब किया था, वो याद है ना आपको कि एक्स वाई की वैल्यू हमने कैसे उसको मैनिपुलेट किया था, फिर एक्स और वाई का वैल्यू पुट कर दिया था और फिर माइनस करके हमने उसको उस चीज़ को टैकल किया था पुट करके।
सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट फुलफिल हो गया। युवा देख आया कुछ? हाँ तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट भी कर। अरे ये तो इजी है यार, इतना टाइम क्यों लग रहा है? कैलकुलेटर लेके बैठ जाओ यार, फटाफट कर दो। चलो मैंने ही सॉल्यूशन खोल दिया। प्रॉब्लम सॉल्व हो गया सुमित्रा? यस सर। आया मैक्सिमा आया? यस। तो आंसर ठीक हो गया। चलो इसके बाद तो प्रॉब्लम सब कर लोगे, ये सब लैग्रांज मल्टीप्लायर मेथड वो लगाना है ये सब। एक सेकंड में एक बार देखूं इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन का कुछ है कि नहीं। हाँ इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन का भी प्रॉब्लम्स हैं। ये नोट तो मैं पूरा आपको डाल दूंगा, आप लोग अच्छे से देखना, ठीक है? कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट क्लास में इसको अच्छे से डिस्कस करूंगा डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर। चलो थैंक यू सुमित्रा ज्वाइनिंग फॉर टुडेज क्लास। आज रैप अप कर देते हैं, ठीक है? थैंक यू सर। ओके रैप अप कर दे युगादिक। युगादिक यस सर। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर वेडनेसडे को मिलते हैं। हाँ वेडनेसडे को हम थोड़ा जल्दी ज्वाइन कर जाएंगे, 5 से 5:10 के बीच में। फिर 7 साढ़े 7 तक अच्छे से क्लास करेंगे, ठीक है? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन सीखेंगे। दैट इज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट फ्रॉम माई साइड। वो वाला पार्ट मुझे बहुत पसंद है, ठीक है? इस वेडनेसडे को, ठीक है? यस सर। थैंक यू सर। दोनों ज्वाइन हो जाना। हाँ थैंक यू सर। हाँ बाय बाय, दोनों ज्वाइन हो जाना। हाँ
ओके सर। इस वेडनेसडे को बाय।